خدا کی طرف۔ آج کا جو زندہ جلالی کلام ہے جو خدا نے مجھے دیا، میں آپ کو دیے چلتا ہوں۔ اور آج کا جلالی کلام ایک بار پھر سے نہایت ہی زبردست، یونیک اور نایاب ہے ہمیشہ کی طرح۔ اور آج کا کلام خدا کا مضمون، ٹاپک کچھ یوں ہے: غیر قوموں میں خدا کا جلال جب وہ ایمان لائیں۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ اس مضمون کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ غیر قومیں جب زندہ خدا پر ایمان لاتی ہیں تو وہ خدا کا جلال دیکھتی ہیں۔ تو عزیزو، یہ نہایت ہی زبردست، ہم بھی کسی وقت میں غیر قوم ہی تھے، آپ بھی کسی وقت میں غیر قوم ہی ہوں گے۔ غیر قوم کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ خدا کی ہی قوم ہیں، آپ خدا کے خون خریدے ہیں۔ جب تک آپ کا پرسنل انکاؤنٹر، پرسنل فیس ٹو فیس خداوند کے سامنے ملاقات نہ ہو، آپ شخصی اسے نجات دہندہ نہ مانے، جب تک ایمان دل سے لایا نہ جائے اور اقرار منہ سے نہ کیا جائے، اس سے پہلے آپ اگر مسیح گھر میں بھی پیدا ہوئے تو عزیزو آپ غیر قوم ہی ہیں۔ جب تک آپ کلام خدا کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے، آپ چاہے مسیح گھر کے اندر پیدا ہوئے تو آپ غیر قوم ہی ہیں۔ ہم زندہ خدا کو تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کو آمنے سامنے دیکھیں، یا اسے محسوس کریں، یا اس کے خدا روح القدس کو اپنے اندر لیں اور اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی تب تبدیل ہوتی ہے جب ہمارا پرسنل انکاؤنٹر زندہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم غیر قوم ہی ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، بہت ساری غیر قومیں آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہوں گی، اور لٹرلی آج ہم بات کریں گے دوسری غیر قوموں کے بارے میں بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں کلام خدا کی طرف، اور سب سے پہلے ہم آج کی مرکزی آیت دیکھتے ہیں، مقدس یعقوب رسول کی معرفت لکھا گیا زندہ خدا کا پاک سخن، اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں سے 26ویں آیت۔ اور عزیزو، اس کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے، سنیے گا غور سے، آپ بہت برکت پائیں گے۔ اور یہ کلام خدا ہمارے لیے نہایت ہی بابرکت ہے۔ تو عزیزو، اس کلام خدا میں اس استباق میں کچھ یوں مرقوم ہے: اسی طرح راہب فاشا بھی جب ان کے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا، تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن روح کے بنا مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، یہاں پر آپ نے 26ویں آیت میں سنا کہ غرض جیسے بدن روح کے بنا مردہ ہے، ویسے ہی ایمان جو ہے وہ اعمال کے بنا مردہ ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے غیر قوم جب خدا پر ایمان لاتی ہے تو وہ خدا کے جلال کو دیکھتی ہے۔ اب ایمان لانا، خدا پر ایمان لانا، ایمان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لفظ کا مطلب آپ کو بائبل میں سے ہی ملے گا۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ آپ پیچھے اسی کتاب کے پیچھے جب جاتے تو عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب میں ایمان کی ایک لمبی فہرست آتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے ماں باپ کی، اور ایسے زندہ خدا کے سورماؤں کی، انبیاء مرسلین کی، انبیاء اکبر کی، انبیاء اصغر کی، جن کے ہراول اور چنڈاول خدا کا جلال رہا، خدا کی قدرت رہی، خدا کے تمام کروبیم، سرافیم، ترافیم، تمام ملائک رہے، تمام فرشتگان رہے، اور انہوں نے زندہ خدا کے پرچار کو دنیا تک پھیلایا۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ پربھو یشوع مسیح آئے تو پربھو یشوع مسیح نے بھی ایسے ہی زندہ خدا کے نام کو پھیلایا، اور اس کے حواریوں نے بھی، اس کے چیلوں نے بھی، اس کے اپوسٹلز نے بھی، اس کے شاگردوں نے بھی زندہ خدا کے کلام کو پھیلایا۔ تو پیچھے آپ دیکھتے کہ لمبی فہرست ہمیں نظر آتی ہے ایمان کی، اور ایمان کا مطلب جب ہمیں ملتا ہے تو وہ اس سے اگلی جو ہم ابھی مرکزی آیت جس کتاب میں سے لیے ہوئے ہیں وہ یعقوب کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 26ویں آیت، غرض جیسے بدن روح کے بنا مردہ ہے، ویسے ہی ایمان اعمال کے بنا مردہ ہے۔ اب کہنے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ اگر آپ زندہ خدا پر ایمان لے آئے ہیں تو ایمان جو ہے وہ اعمال کے بنا مردہ ہے۔ ایمان جو ہے وہ اعمال کے بنا مردہ ہے۔ میں آپ سبھی کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یعقوب 2 باب ضرور پڑھیے گا۔ یعقوب 2 باب میں آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن نظر آئے گی کہ کیسے اعمال اور ایمان جب ملتے ہیں تو تب جا کے پختہ
اور ایک کامل ایمان اور ایک کامل زندہ خدا کا سورما اور بیٹے بیٹیاں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جب بات ہو رہی ہے ایمان کی، تو غیر قوم جب ایمان لاتی ہے زندہ خدا پر تو ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اعمال بھی اپنے سیدھے کریں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں یعقوب 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں۔ شیاطین کی ایمان رکھ دینے جی، ساڈے ہندی بہن بھرا، ساڈے پنجابی بہن بھرا، اور ہمارے اردو سپیکنگ بہن بھائی، اور ہمارے انگلش لٹریچر کو سمجھنے والے بہن بھائی بھی موجود ہیں سارے۔ تو زندہ خدا کا سورما فرماتا ہے کہ تو ایک خدا تے ایمان رکھنا ہے، خیر چنگا کرنا ہے۔ شیاطین بھی رکھ دینے تو تھر تھر کانپ دینے تے اسی تے کانپ دے بھی نہیں۔ تو کہنا چاہ رہا ہے شیاطین بھی ایک ہی بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ٹینشن نہیں لے، تو ایک خدا پہ ایمان رکھتا ہے کوئی بات نہیں، شیاطین بھی ایک ہی خدا تے ایمان رکھ دینے اور تھر تھر کانپ دے بھی نہیں۔ مگر 20 آیت میں کہتا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے۔ جب نیچے آتے ہیں تو باپ ابراہیم کی مثال دی جاتی ہے کہ ابراہیم پہلے ایمان لایا، لیکن اس کے بعد اس کے اعمال اور کام بھی چنگے سن، اور کام بھی چنگے ہن۔ خدا نے ایک شریعت دیتی کہ جا اپنا بیٹا قربان کر، تو انہیں جا کے قربان کر چھڑیا، اپنے لوگوں نے کر ہی چھڑیا سی۔ تو انہاں دا ایمان اور اعمال ویکھو۔ پھر اہی پڑھنے 5 آیت دے وچ جہاں پر میں راہ فاشا نظر آتی ہے، ایک قصبی نظر آتی ہے، تو وہ پہلے زندہ خدا پر ایمان لیتی ہے، جب اس کے بارے میں سنتی ہے تو اپنے اعمال سے وہ راست باز ٹھہری۔ کیسے؟ اس کو آگاہی کی گئی کہ خدا کے لوگ ہیں، انہیں چھپایا جائے، وہ چھپاتی ہے، اور وہ زندہ خدا پر ایمان اور اعمال دونوں دکھا کر راست باز ٹھہرتی ہے۔ اب عزیزو، جو کہ ٹاپک ہے کہ غیر قوموں پر زندہ خدا کا جلال ظاہر ہوا اور غیر قومیں خدا پر ایمان لائی، خدا پر ایمان لانے کے بعد غیر قوموں کو زندہ خدا کا جلال نظر آتا ہے۔ تو ہم نے راہب کا قصہ پڑھا، آپ دیکھتے ہیں مقدس یشوع کی کتاب میں ان کا ذکر ہے۔ یہ راہب فاشا تھی، راہب قصبی تھی، ایک جسم فروش تھی اور ایک گنہگار عورت تھی۔ یہ کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایمان لے آئی ہوں تمہارے یہوہ خدا پر، میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ جب ہم نے اور ہماری پوری قوم نے اس کے بارے میں سنا، یرہو پورے نے سنا، تو ہمارے دل پگھل گئے۔ ہم جانتے ہیں ہر ایک شخص کی جان اس میں باقی نہ رہی، ہم جانتے ہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر ایک ہی زندہ خدا ہے، اور وہ تمہارا خدا ہے، جو اسرائیل کا خدا ہے، وہ یہوہ خدا ہے۔ غیر قومیں اتنا زندہ خدا پر ایمان لائی، اور اب جب اس نے اعمال اچھے کیے تو زندہ خدا نے اسے بچانے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے کہا دیکھو، ہم نے آپ کے 2 قاصدوں کو، 2 وٹنسز کو، 2 گواہوں کو جو میرے پاس آئے، جو پیادے 2 آئے، ان کو میں نے بچایا۔ خدا کے لوگوں کے ساتھ رہیے عزیزو، خدا کے لوگوں کی دیکھ ریکھ کیجئے، تو خدا آپ کی نسلوں کو بھی بچائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں بچایا۔ کیا کیا؟ میں نے انہیں بچایا۔ تو جب تمہارا خدا آئے، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے خدا نے پورا یرو شہر جو ہے وہ آپ کے قبضہ میں کر دیا ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب آپ آئیں اپنے خدا کے ساتھ تو میرے خاندان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یشوع 6 باب میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور بخوبی تفصیل ملتی ہے، کچھ نہیں ہوتا انہیں۔ یرو شہر کی بہت چوڑی چوڑی دیواریں ہوتی ہے۔ جب آپ انسائکلوپیڈیا پر دیکھتے ہیں، ہسٹری کی کتابوں میں، تو 2 رتھ جو ہے وہ چوڑائی میں آرام سے اس پہ دوڑ سکتے تھے۔ آپ اسی سے حساب لگا لیں، وہ ایسی دیوار تھی کہ دیوار کے اوپر راہ فاشا کا گھر تھا۔ آپ حساب لگائیں کہ اس کا گھر اس کے اوپر تھا۔ اب جب گھر اس کے اوپر تھا تو کتنی چوڑی وہ دیواریں ہوں گی۔ تو عزیزو، اس نے کہا کہ میرے گھر والے، میرے ماں باپ، بہن بھائی سب بچ جانے چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں مقدس یشوع کو جب یہ بتایا جاتا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے قاصد کیا کہتے ہیں کہ تو ایک لال ڈورا جو ہے وہ اپنی کھڑکی کے باہر لٹکا دینا تاکہ ہمیں نظر آئے اور ہم تجھے بچا لیں گے۔ عزیزو، یہ غیر قوم جب ایمان لائی زندہ خدا پر تو ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اس نے خدا کا جلال دیکھا، اور جب خدا کا جلال دیکھا تو ساری کہانی آ جاتی ہے لال ڈورے پر۔ اب وہ لال ڈوری جب کھڑکی کے باہر لٹکائی گئی تو آپ دیکھتے ہیں 6 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، لیکن یشوع نے راہب قصبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو جو کچھ اس کا تھا
सबको सलामत बचा लिया, और उसकी पोदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासदों को जिनको यशवा ने यरू में जासूसी के लिए भेजा था छुपाए रखा। हालेलुया। ऐसा आप देखते, तूफान आता है, पूर्वी हवा चलती है, वो इतनी चौड़ी मोटी जो दीवारें होती हैं, वो 7 चक्कर लगाने से, नरसिंगा फूकने से, ऐत के संदूक को 7 चक्कर लगवाने से जब नरसिंगे फूके जाते हैं, तो अजीजों वो मोटी मोटी दीवारें भी हालेलुया के नारे से गिर जाती है। शैतान के बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं, तमाम शयातीन के बड़े बड़े लश्कर जो हैं वे नेस्तो नाबूद हो जाते हैं जिंदा खुदा के नाम में। तो गैर कौम क्यों ना उस पर ईमान लाए। गैर कौम ईमान लाती है, फिर अमाल दिखाती है, और जिंदा खुदा उसको और उसकी नस्ल को बचा लेता है। अमाल एक और भी कहा था उन्होंने बचाने के बाद के लाल डोरा खिड़की से बाहर आप निकाल दीजिएगा। वो लाल डोरा क्या था जीजो? ये यशवा के जो कासिद थे, ये कोई कलाम से खाली नहीं थे। इन्होंने देखा था पीछे के हमारे बाप दादा को जिंदा खुदा ने कैसे बचाया। उन्होंने ऐसे बचाया कि जो बर्रे का खून था वो लिया दीवार के ऊपर अपने दरवाजों के ऊपर उन्होंने लगाया, दरवाजों के सर और दोनों बाजुओं पर लगाया। और अजीजों वो कोई आम छवि नहीं थी, वो कोई आम शैडो नहीं था, वो कोई आम साया नहीं था। वो जो काम कर रहे थे वो कोई आम काम नहीं था, वो एक बड़ा जरूरी काम था। वो जो दरवाजे के सर के ऊपर और दोनों बाजू के ऊपर ईद फसा के मौका पर जो बर्रे का खून लगाया था, वो यीशु मसीह की तस्वीर थी। वो यीशु मसीह को जाहिर करता था। तमसीलन अजल से ज़िबा किया हुए बर्रे का खून जिसके घर पर होगा, उसकी नस्ल बचेगी, उसकी माँ बचेगी, उसका भाई बचेगा, उसका बाप बचेगा, उसकी बहन बचेगी, और सारे का सारा खानदान बच जाएगा। तो इसीलिए वो लाल रंग के खून को तशबीहन लाल डोरी दी गई कि आप अपनी खिड़की से लाल डोरी को निकालिएगा, और वो यस्सु अल मसीहा के खून को जाहिर कर रहा था, उस अजली बर्रे को खून को जाहिर कर रहा था। अमान ईमान जब आप लाते हैं उदू बात तुसी अमाल चंगे कर दे हो, खुदा दे दिते हुए अमाला ते चलदे हो, यस्सु दे दिते हुए अमाला ते चलदे हो, प्रभु दे दिते हुए अमाला ते चलदे हो, ते याद रखिए जा खुदा तुहाडे अंदर अपना जलाल जाहिर करेगा और तुसी बचोगे। पूरा यरू शहर बर्बाद हो गया, लेकिन वो राह फाशा जो थी वो बच गई। गैर कौम से थी, किससे थी? गैर कौम से थी। अजीजों, आज आप और मैं जिंदा खुदा पर क्या ईमान रखते हैं? ਅਸੀਂ ईमान ते लैन आ, ਅਸੀਂ ईमान ते लैन है, पर साडे अमाल की ने? बाइबल च की हुक्म फर्ज की है? हुक्म इलाही जो हुक्म अजीम है, याद रखिएगा। हुक्म अजीम अक्सर लोग कह देते हैं सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे, ये हुक्म अजीम नहीं है, ये सबसे बड़ा हुक्म नहीं है। सबसे बड़ा हुक्म पुराने अहदनामा में हमें नजर आता है, फिर वही यीशु मसीह दोहराते हैं कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल से खुदा को प्यार कर और अपने मानिद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। सबसे बड़ा हुक्म यह है। बट जो हम देखते हैं हुक्म फर्ज, फर्ज क्या है? फर्ज का मतलब है कि आप पैदा क्यों हुए, आप किस लिए पैदा हुए। आप पैदा हुए, कोई काम तो होगा। आपको आज तक कभी आपके पासबान ने बताया कि आप किस लिए पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए हैं? पुराने अहदनामा में लिखा, यशायाह की किताब में, कि तू खुदावंद अपने खुदा की हमद कर। इंसान को इसलिए पैदा किया गया। लेकिन नए अहदनामा में आप मत्ती 16 बाब पे पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, 28वें बाब में सॉरी, तो वहां पर लिखा है कि तुम सब कौमों में जाओ और इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ये हुक्म फर्ज है। आपके पैदा होने का मकसद, ईमान तो ले आए यीशु मसीह पर, ईमान तो ले आए यहोवा खुदा बाप पर, ईमान तो ले आए खुदा रूहुल कुदुस पर। तो अजीजों, अमाल कहाँ है हमारे? हमें भी खुदा ने कोई हुक्म दिया है कि आप सब कौमों में जाएं और उन्हें बाप और बेटे रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दें, और जो तालीम मैंने तुम्हें दी है, उसके नीचे क्या लिखा है? जो तालीम मैंने तुम्हें दी है वो दो, अपनी ना दो। जो तालीम मैंने तुम्हें दी है वो दो, अपनी ना दो। अपनी माँ बाप की, बाप दादा की रवायतों को लेकर मत चलो। जो तालीम बाइबल की है वो दो। तो अजीजों, इन कामों के ऊपर उस गैर कौम राह फाशा जब ईमान लाई, तो बहुत से लोगों ने, उसके साथ जितने भी थे, वो सब बच गए और सबने बड़ी बरकत पाई। और आप जानते हैं कि ये एक निहायत ही एक वसी चैप्टर है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताता हूं। जब हम 25वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है यशवा
जिंदा खुदा का सूरमा, उसके वसीला से राहब फाहशा कस्बी जो थी, उसका पूरा खानदान, उसका घराना बचा रहा। और आगे लिखा है उसकी पोदोबाश आज के दिन भी इसराइल में है। पोदोबाश कहते हैं, पोद कहते हैं अरबी जुबान का लफ्ज है खानदान यानी नस्ल। राहब फाशा की नस्ल आज भी है। कहां पर है? लिखा है इसराइल में है। भाई ये गैर कौम खुदा के जलाल को देखती है और वो देखती है कि मैंने जिंदा खुदा पर ईमान लाया और उसके अमाल पर अमल किया, तो अब उसकी नस्ल, बाइबल में लिखा उसकी नस्ल आज भी इसराइल में है। कहां है? राहा फाशा की नस्ल कहां है? कोई आपसे मुझसे पूछ ही ले कि भाई ये जो राहा फाशा की आप बात कर रहे हैं उसकी नस्ल कहां है, तो अजीजों मैं आपको उसकी नस्ल दिखाई देता हूं। उसकी नस्ल कहीं इधर उधर नहीं है, वो भी बाइबल मुकद्दस में ही लिखा है। जब आप मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो आपको एक नसबनामा नजर आता है। पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक आपको एक नसबनामा नजर आता है। उस नसबनामे के अंदर 4 औरतों का जिक्र है। नंबर 1 तिमर, नंबर 2 राहब, और नंबर 3 रूत, और नंबर 4 मरियम। मुकद्दसा मां मरियम की बात हो रही है। और अजीजों देखते हैं, जब आप तिमर, राहब, रूत और मरियम, इस नसबनामे के अंदर 4 ही औरतों का जिक्र है। और मैं आपको बताऊं कि जो तिमर है उनका जब आप रिलेशन देखते हैं तो वो भी थोड़ा डाउटफुल नजर आता है। राहब देखते हैं वो ऑलरेडी फाहशा थी। रूत देखते हैं वो ऑलरेडी मुआब से थी, गैर कौम से थी, जिसे खुदा पसंद ही नहीं करता। सिर्फ आप मुकद्दसा मरियम को देखते हैं तो इनका एक करेक्टर हमें ऐसा नजर आता है जो कि पाक थी और जिनके वसीला से यीशु मसीह इस जमीन पर आए, जो हमारे खुदावंद यीशु अल मसीहा की मां थी। अब जब आप देखते हैं दो करेक्टर को देखते हैं, बॉयज राहब से पैदा हुए और उबैद रूत से पैदा हुए। ये जो राहब है, आप देखते हैं मत्ती पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है और सलमोन से बॉयज राहब से पैदा हुए। अजीजों ये वही राहब है। कहने का मकसद ये है कि जब आप पुरानी जिंदगी को छोड़ते हैं, इसकी सारी तशबीह हमारे से, हम क्या थे? फहशा थे। हम क्या थे? जिस्म फरोश थे। आपने देखा, एजिकियल की किताब पढ़िए, यिर्मयाह की किताब पढ़िए, खुदावंद खुदा एक मसल देते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। वो भी जिस्म फरोश कहते हैं कौम बनी इसराइल को, और उसकी बेटी यरूशलेम को भी जिस्म फरोश कहते हैं कि तुमने ज़नाकारी की, बुत परस्ती की। वो रूहानी बातें कर रहे हैं, बट जिस्मानी तौर पे ये कि वो गुनाह करते हैं। हम भी जब गुनाह करते हैं तो हम अजीजों ऐसी गैर कौम बन जाते हैं जिसको खुदा नहीं जानता। लेकिन जब खुदा पर ईमान लाते हैं और उसके कहे पर अमल करते हैं तो हम राहब फाशा की तरह बन जाते हैं। और अजीजों आपको फिर खुदा गुनहगार नहीं रहने देता। आप जब जिंदा खुदा पर ईमान लाते हैं, उसके कहे हुए अमाल पर अमल करते हैं, तो आपको जिंदा खुदा, आपको प्रभु परमेश्वर, उसका प्रिय पुत्र जो है, उसका जो होली गोस्ट है, होली स्पिरिट है, उसका जो खुदा रूहुल कुदुस है, वो आपको ना जानी रहना देता है, ना आपको जिस्म फरोश रहने देता है, ना आपको कसबी रहने देता है, ना आपको फहशा रहने देता है। आपको उठा के यीशु अल मसीहा के नसब नामे में डालता है। आपको उठा के यीशु अल मसीहा के बाप दादा में डालता है। आपको उठा के यीशु अल मसीहा की नस्ल में डालता है। जिनकी नस्ल से यीशु अल मसीहा आए, रहा फाशा उनकी दादी परदादियों में उनका नाम आता है। क्योंकि जब आप जिंदा खुदा पर ईमान लाते हैं, उसके कहे पर अमल करते हैं, तो अनॉइंटिंग आपके अंदर से जारी होती है, मसा आपके अंदर से जारी होता है, जलाल आपके अंदर से जारी होता है, जिंदा खुदा के सूरमा आपके अंदर से पैदा होते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अजीजों आप जानते हैं कि राहब से कौन पैदा हुए? पहले तो आप देखिए राहब के हस्बैंड कौन थे? बॉयज। बॉयज एक जिंदा खुदा का सूरमा जो एक बेगुनाह था, जिसने कभी गुनाह को देखा नहीं, और एक यीशु मसीह की पिक्चर थी। बॉयज उसका हस्बैंड आता है। सॉरी, आप जब देखते हैं कि कैसे जिंदा खुदा राहब फाशा, राहब जो है उनकी जिंदगी को तब्दील करता है, तो बॉयज उनकी देखते हैं उनसे पैदा होता है। जिंदा खुदा का सूरमा जो है वो बॉयज उनसे पैदा होता है। और बॉयज जब पैदा होता है तो वो हस्बैंड बनता है रूथ का। बॉयज जब पैदा होता है तो वो हस्बैंड बनता है किनका? रूथ का। ये खुदा की कुदरत है अजीजों, ये खुदा की कुदरत है कि जिंदा खुदा जो है वो अपने लोगों का ख्याल रखता है। जिंदा खुदा जो है वो अपने लोगों का ख्याल रखता है। और देखिए ऐसा हस्बैंड उन्हें मिला जो कि जिंदा खुदा का खुद सूरमा था। ऐसा हस्बैंड उन्हें मिला जो कि जिंदा खुदा का खुद सूरमा था।
तो अजीजों, जब आप देखते हैं कि कैसे राह फाशा जो है वो जिंदा खुदा के नसब नामे में आ जाती है, उसके बाद आप देखते हैं तिमर है, उसके बाद आप देखते हैं रूत है। रूत तो खुद एक मुआब से थी, रूत तो खुद मुआबी थी। और आप देखते हैं कि पीछे जो हमने पढ़ा कि राह फाशा जो पोदोबाश उनकी है, यानी कि उनकी नस्ल जो है वो आज भी है। बिल्कुल आप देखते हैं राह फाशा जो बोइस जिनसे पैदा हुआ, बोइस के बाद कौन पैदा हुआ? ओबेद, ओबेद के बाद कौन पैदा हुआ? यस्सी, यस्सी के बाद कौन पैदा हुआ? दाऊद, दाऊद के बाद कौन पैदा हुआ? सुलेमान, सुलेमान के बाद कौन पैदा हुआ? रोहबाम, रोहबाम के बाद जब लड़ी चलती आती है तो आखिर में यीशु अल मसीहा पैदा होते हैं। ये है राहब फाशा, जो कि फाशा नहीं रही। राहब का नसबनामा, राहब की पोदोबाश, राहब की नस्ल आज जो हमारे सामने है। आप देखते हैं ओबेद जब पैदा हुए, और ओबेद के हस्बैंड बोइज, बोइज किसके हस्बैंड थे? रूत के। रूत भी गैर कौम की थी, मुआब की थी। मुआबियों से खुदा बहुत नफरत करते थे। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, जब नायोमी गई मुआब के अंदर तो उन्होंने अपने दो बेटों का ब्याह किया तो दोनों फौत हो गए, उर्फा और रूथ। उर्फा तो चली गई अपने देवताओं के पास और अपने घर वालों के पास, लेकिन रूथ नहीं गई अजीजों। हालांकि गैर कौम से थी, उसका तो कोई बेटा भी नहीं था, जाने को वो जा सकती थी, लेकिन रूथ को देखिए, वो गैर कौम की लौंडी, वो गैर कौम की औरत, वो गैर कौम की लड़की जिंदा खुदा पर ईमान लाती है। और उसका अमाल चेक कीजिए, वो अमाल में क्या कहती है कि तब वो फिर चिल्ला कर रोई। कौन? उर्फा, उर्फा चिल्ला कर रोई। लेकिन रूत ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। हालेलुया। जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी, जहां तू दफन होगी मैं भी वहीं दफन होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई भी चीज मुझे तुझसे जुदा कर दे। हालेलुया। रूत पहले ही बाप में जब आप पढ़ते हैं और उसकी 16वीं आयत से, तो ये जिंदा खुदा के अजीम भेद आपको नजर आते हैं। जिंदा जलाली खुदा के अजीम मुकाशफात और उसकी दिल की तह की बातें आपको नजर आती हैं, क्योंकि रूथ मुआबी जो थी वो जिंदा खुदा पर ईमान लाई, और जिंदा खुदा पर ईमान लाने के बाद उसके अमाल भी आपके सामने हैं। और अजीजों, जब ये दोनों काम हो जाते हैं तब इंसान कामिल रास्तबाज बन जाता है। जब कामिल रास्तबाज बन जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे जिंदा खुदा इनमें से एक सूरमा पैदा करता है। बॉयज जो कि हस्बैंड बनता है रूथ का, एक जिंदा खुदा का सूरमा, खुदा यीशु मसीह की पिक्चर, जब हस्बैंड बनता है किसका? रूथ का। और बॉयज बेटा किसका है? किसकी नस्ल से है? राहब फाशा की, जो कि फाशा नहीं रही, मुकद्दसा राहब की नस्ल से बॉयज। और हस्बैंड बना किसकी? गैर कौम में से जो आई, रूथ। और जब दोनों मिले, दोनों जिंदा खुदा के साथ मिलकर उन्होंने खुदावंद के नाम को जपा, खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। तो अजीजों याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, वो कहती है, और मैं तेरे लिए तेरी जान का, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 पेटों से भी बढ़कर है, 7 पेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। हालेलुया। अजीजों, ये जो मुआबी रूत थी, ये 7 बेटों से भी बढ़कर थी। इतनी मोहब्बत की उसने जिंदा खुदा से, जिंदा खुदा के लोगों से इतनी मोहब्बत की। और नायोमी के जब लड़का पैदा होता है तो वो अजीजों ओबेद पैदा होता है, और ओबेद से यस्सी पैदा होता है। और आपको पता है यस्सी की कौम्पल, यस्सी की तने में से एक कौम्पल पैदा होगी, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीहा। जिंदा खुदा के साथ जब आप चलते हैं, जिंदा खुदा को जब आप ईमान से कबूल करते हैं, उसके कहे पर अमल करते हैं, तो वो ना ही आपको फाशा रहने देता है, ना ही आपको गैर कौम रहने देता है, बल्कि वो आपको अपनी नस्ल बना लेता है। तो अजीजों, आज हमारे लिए और आपके लिए क्या है ये मजमून और क्या है ये चैप्टर? आप देखते हैं इसी तरह एक बहुत ही बहुत ही बदकार औरत को नए अहदनामा में, यूहन्ना की इंजील में, जब आप चौथे बाब में देखते हैं, सामरी औरत का जिक्र है। कई हस्बैंड्स कर चुकी, लेकिन अजीजों याद रखिएगा, जब वो जिंदा खुदा पर ईमान तो रखती थी, लेकिन अमाल पर जब उसने गौर किया तो यीशु अल मसीहा ने उसको उसका दिखा दिया।
कि तू ये है, और जब वो अमाल भी अपने यीशु मसीहा के कहे पर अमाल पर अमल करती है, उसकी पाक शरीयत, उसके पाक हुक्मों, उसके पाक आइन पर अमल करती है, तो जीजो याद रखिएगा उस बदकार औरत के वसीला से गांव के गांव पूरे पिंड दे पिंड बच जाते ने। क्यों? क्योंकि गैर कौमें जब जिंदा खुदा को कबूल करती हैं, उस पर ईमान लाती हैं, उसके जलाल को देखती हैं, तो जीजो वो फिर गैर कौमें नहीं रहती, फहशा फहशा नहीं रहती, मुआबी नहीं रहती, गुनागार नहीं रहते, नादान नहीं रहते, बेवकूफ नहीं रहते, रद्द किए हुए नहीं रहते, बल्कि दी अनॉइंटेड वन बन जाते हैं, बल्कि दी फोरबिडन सन्स बन जाते हैं। वो इकलौते बेटे के वसीला से जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यीशु अल मसीहा हमेशा कहता आया है कि तुम कमीने थे, तुम छोटे थे, तुम नादान थे, लेकिन जब तुम मेरे पास आए तो तुम कमीने ना रहे। पहला करंथियों जब आप पढ़ते हैं, तुम छोटे ना रहे, तुम नादान ना रहे, बल्कि तुम तो दानाओं के दना बन गए। तुम तो ऐसे दना बन गए कि तुम हाकिमों की हिकमत को नेस्त करोगे और कुदरत वालों की कुदरत को पस्त करोगे। जिंदा खुदा जब आप पे जाहिर होता है तो अजीजों, आपकी और मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए। हमें गैर कौमों की तरह देखना चाहिए कि वो कैसे ईमान लाते हैं, फिर उस पर अमाल करते हैं, और फिर जिंदा खुदा के जलाल को देखते हैं। आज बहुतेरे, ज्यादा नहीं, मैं कुछ पासबानों की जिक्र करूंगा कि देखिए कैसे वो गैर कौमों से आकर और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। कुछ की बहुत कुछ हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने खुदा के नाम को बढ़ाया है कि आप और मैं आज देखते हैं। तो अजीजों, आप और मैं तो जिंदा खुदा के घर पर पैदा हुए हैं। हम ईमान तो रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और उस ईमान से बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन अजीजों, क्या जो यीशु मसीह ने कहा है वो हम करते हैं? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। क्या हम मसीह जैसा मिजाज रखते हैं? उसने कहा, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से खुदा को प्यार कर। और ये प्यार करने का मतलब ये है कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या आप कलाम खुदा को पढ़ते हैं? क्या आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं? अगर आप कलाम को नहीं पढ़ते तो अजीजों, आपका ईमान कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अमाल का नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो वो पढ़ने से पैदा होता है। बेशक आप यसु अल मसीहा की शान के बारे में जब सुनते हैं तो आप ईमान ले आते हैं, लेकिन निजात याफ्ता रहने के लिए यसु को पढ़ना जरूरी है। निजात याफ्ता रहने के लिए यहोवा खुदा बाप को पढ़ना जरूरी है। निजात याफ्ता रहने के लिए खुदा रूल कुदूस को पढ़ना जरूरी है। और अजीजों, इन सब को आप पढ़ने का मतलब यह है किसी को जानना। पढ़ने का मतलब है किसी को जानना, और जान आप तभी सकते हैं जब आप उसके साथ टाइम गुजारेंगे। पढ़ने का मतलब क्या है? उसके साथ टाइम गुजारना। मैट्रिक करने तो 10 साल पढ़ने ना, स्कूलों के नाल कितना टाइम गुजारने, टीचर ना कितना टाइम गुजारने, ट्यूशन वालियां कितना टाइम गुजारने। फिर आ जाती है इंटर, 2 साल कॉलेजेस दे विच कित्थों असीं जाने किहड़े कोने ते कितना टाइम गुजारने। तो फिर किले जाके साड़ियाँ 12 होंदियां ने। एंड यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं, एमए करते हैं, बीए करते हैं, बैचलर्स करते हैं, एमएस करते हैं, कंप्यूटर साइंस में आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। कितना लगन है आपको अपनी पढ़ाई से? कितना वक्त देते हैं आप किताबों को? ते खुदा दे मुंह दे कलमा जिरे बारे च लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। बाइबल मुकद्दस नूं कितना टाइम देंदे? खुदा दे कलाम नूं कितना टाइम देंदे हो? मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, ते बाइबल किथे गई? खुदा दा वचन किथे गया? खुदा दी दित्ती हुई आशीष किथे गई? अज साडे घरां दा हाल की है? साडी औलाद दा हाल की है? साडे घर वालियां दा हाल की है? रिश्तेदार नूं खाण पैंदा कि नहीं? बस ईमान ले आया, अमाल कोई नहीं। तो अजीजों, आप बच नहीं सकते। एक कजन दूसरे कजन दे बारे च की सोचदा है? एक कजन दूसरे कजन दे बारे च की सोचदा है? आप और मैं अजीजों अच्छी तरह जानते हैं हम एक दूसरे के बारे में, कजन्स के बारे में क्या सीखते, क्या समझते हैं, क्या उनके बारे में हम सोच रखते हैं। लेकिन याद रखिया जे यसू दा भी एक कजन सी, ते यसू खुद भी किसी दा कजन सी, जिहदे तो 6 महीने छोटा सी। यूहन्ना इस्तकबागी, जॉन द बैप्टिस्ट,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कजन थे यीशु मसीह के, जो 6 महीने बड़े थे उनसे। कितने महीने? 6 महीने बड़े थे उनसे। सदके जावा इस कजना दे, ए रिश्तेदारियां थे। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है किसको? यीशु मसीह को, अपने कजन को, कि जड़ा आने वाला है वो मेरे तो भी जोरावर है, जड़ा आने वाला है वो मेरे तो भी पहला सी, जड़ा आने वाला है वो मेरे तो भी मुकद्दम ठहरा, ता मैं और जुत्ती दे तस्मे खोलन दे लायक भी नहीं। ऐसा जलाल। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਨੇ, यूहन्ना इस्तकबागी ਦਾ ਅੱਜ तक कुछ जमिया ही नहीं। हालेलुया। तो अजीजों, पढ़िए कलाम खुदा को, वरना गैर कौम रहकर आप दुनिया से चले गए तो आप और मैं ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे। जानिए खुदा को, पढ़िए खुदा को। ये गैर कौमों का इसलिए लिखा गया ताकि आपके मेरे लिए तंबी हो। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ये ना हो कि हमारे लिए वो आयत, ये मसल पूरी हो कि बहुतेरे आखिर से अव्वल हो गए और बहुतेरे अव्वल से आखिर हो गए। मशरिक से आएंगे लोग, इब्राहिम, इसाक, याकूब के साथ ज़ियाफ़त करेंगे, लेकिन बादशाही के बेटे बाहर आग में डाले जाएंगे। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।